the 2 points? क्या डिस्टेंस है बिटवीन द 2 पॉइंट्स में? x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole root. रॉन्ग, थोड़ा सा अंडर गलत हो रूट गया। x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस हाँ। y1 minus y2 का होल स्क्वायर अंडर ठीक है, रूट आ जाएगा। होल स्क्वायर रहता है ईच टर्म का, देन स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर इट। ओके, what happen if we have a point xy and we want to know the distance from the origin? तब क्या डिस्टेंस होगा? If one point is origin and the other one is xy, then what is the distance? तब क्या होगा बच्चे? Tell me. x को 0 और y1 को 0 ले लो। हाँ तो बताओ ना, फॉर्मूला बताओ क्या होगा। Tell me. I agree whatever you are saying, Bhavna. All of you, I am audible. x square plus y square whole square नहीं होगा बेटा? Hello. बच्चे, I am audible or not? Yes, ma'am. Audible, ma'am. Yes, ma'am. So x square plus y square whole square होगा ना फॉर्मूला तो, ठीक है? Okay. Just tell me the section formula. Section formula बताओ। if we have a ratio m1 is to m2, m1 is to m2 ratio है और दो पॉइंट्स है x1 y1 and x2 y2. Tell me. m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2. ये तो सिंगल पॉइंट हो गया, x हो गया कोऑर्डिनेट, y का m1 y2 m plus m2 y1 upon m1 plus m2. ठीक है, ठीक है। ओके, इफ वी वांट टू नो द सेंटर, हम निकालना चाहे किसी पॉइंट का, वी हैव 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2, तो देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स? क्या And then we will कोऑर्डिनेट्स? take the ratio k ratio 1 and then No. I'm asking if we have a center point. I'm saying. Then presently I'm not asking the ratio. I'm saying कि if we have a center point, मतलब कि रेशियो क्या होगा सेंटर पॉइंट का? Can you tell me? 1:1 होगा मैम। हाँ, हाफ में 1:1 डिवाइड करा 1:1 होगा। हाँ ठीक है, 1:1 होगा ना। तो कैन यू टेल मी उसका सेंटर पॉइंट की वैल्यूज क्या होंगी? x1 plus x2 x2 upon 2 plus x1 हाँ। upon 2 y1 plus y2 upon 2. y1 plus Very y2 good. upon 2। Very good. That is x1 plus x2 upon 2, y1 upon y2 upon 2. Okay. Can you tell me if we have a triangle? अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है और उसका मुझे सेंट्रॉइड निकालना है। Very good, Bhavna. Whatever you're writing, that's true, beta. So if I want to find the centroid of my triangle, then what is the formula if all the three coordinates are given to me? Tell me. क्या होगा फिर? x1 plus x2 plus x3 upon 3 y1 plus y2 plus y3 upon 3. Very good. Not How you sure. got? हाँ ठीक है, ठीक बताया आपने, but how? Can आपको कुछ idea Because है? it's triangle and from the center point all the distances will be equal, maybe. All the from the center to all the edges, all the distance, sides. हाँ, distance that will is be equal. That is equal. But one thing more we have, if we are taking the from the two coordinates line को जो कट करते हैं वो वहां पर 2:1 रेशो में कट करते हैं, और we can say 1:2 रेशो में। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट आप जस्ट इतना याद रखिए, इफ वी हैव अ ट्रायंगल और उसका सेंट्रॉइड मुझे जानना है, तीनों पॉइंट्स गिवन है ट्रायंगल के, एंड वी वांट टू नो द सेंट्रॉइड, दैट इज x1 plus x2 plus x3 upon 3। एक कोऑर्डिनेट निकल आएगा उस सेंट्रॉइड का, सेंटर पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट क्या है? y1 plus y2 और plus y3 upon 3। ठीक है, यस भावना, वी कैन देन वी अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। यू आर करेक्ट बच्चे। सो आफ्टर दिस बच्चे अभी इतना ही किया था कि आगे भी किया था हमने सेक्शन, और हाँ ये भी किया था ना कि इफ वी हैव पॉइंट्स एंड वी वांट टू फाइंड द रेशियो, देन व्हाट विल वी डू? क्या And then we करेंगे? will take the ratio as k ratio 1 and the formula will become kx2 plus x1 upon m1 plus m2 for y coordinate k y2 plus y1 upon m1 plus m2. m1 plus m2 नहीं, k plus 1। ठीक है, Yes. ठीक है। Means when K. the ratio is k ratio 1, so obviously we'll put हाँ, k we have to m1. replace the m1 m2 by k ratio 1 से replace कर देंगे। ठीक है, so this is our formulas। और इसके बाद भी किया था, ट्रायंगल का निकाल लिया था हमने कि how to find the area of a triangle, we have done the, अच्छा वो नहीं किया अभी।
Okay, so I'm going to share my screen, all of you. हम एक्सरसाइज डिस्कस करने के लिए बोला था आपने। हाँ, we can do that. कर लेंगे, कोई इशू नहीं है. We can discuss the exercise first. Let me share it. मैम हाँ जी, हाँ जी भाव्या बोलो बेटा. मैम मैं बोल रही थी ना कि वो सेशनल्स में जितने भी सिलेबस आएंगे ना मैम, उसके एक बार गेस क्वेश्चन करवा देना मैम, क्योंकि हम लोग बहुत सारे बच्चे मैम मेडिकल से हैं मैम, तो Okay, तो what मैम will I बहुत do? प्रॉब्लम हो जाता Yes, है। ma'am. Just wait a while. Just wait a second. Today I'm going to share our Yes, ma'am. questions to all of you. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ और उसी में से पेपर डालूंगी. खुश? और जितना Yes, करवाया ma'am. है और जितना करवाया Thank you, है, ma'am. जितना करवाया है प्लस आज क्वेश्चंस दूंगी, उसमें से ही पेपर आएगा. खुश हो गए? बस. Yes, ma'am. और बेटा मेरे क्वेश्चन एक दो नहीं होंगे, बहुत सारे होंगे, तो डोंट बी हैप्पी. ठीक है, कितने होंगे मैम? भाई 10 क्वेश्चन और के। you नो can मैम see. कराया नहीं मैम, जो आप अभी दोगे ना मैम, बस उसमें नो से ही नो देना। नो नो, दिस विल नॉट हैपन. मैं उसमें से पासिंग मार्क्स होंगे, बस इतना सोच लो. बाकी जितना करवाया है वो है. कितने क्वेश्चन रहेंगे? बच्चे पेपर बनाया नहीं, अभी कुछ नहीं आएगा मुझे, अभी बनाया नहीं मैंने. जब नहीं बनाऊंगी जो उसके आप बाद. दोगे जो आप दोगे अभी क्वेश्चन। बच्चे हर एक टॉपिक के 20 क्वेश्चन या 10-15 क्वेश्चन तो दूंगी ना. और मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के तो अच्छे खासे हो जाएंगे. देखो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स के तो आपके पास ऑलरेडी है ही है, आपने तो एक्सरसाइज ही कर लिया, उसकी तो जरूरत भी नहीं इतने, है ना. यस मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ना, ऐसा समझो कि हमारे पास कुछ नहीं है, आप भेज देखिए. दो। नहीं, डोंट थिंक लाइक दैट, डोंट थिंक लाइक दैट. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का बेटा ऑलरेडी आपको पीडीएफ दे चुकी हूँ, उसमें से प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अभी और दूंगी, उसमें से कुछ भी आ सकता है. एंड पार्शियल फ्रैक्शन की बात रही और लॉगरिथम की बात रही, उसके क्वेश्चंस मैं आपको सेंड कर दूंगी. ठीक है, एग्री? यस मैम। Yes, ma'am. क्योंकि देखो पार्शियल फ्रैक्शन के जो भी बेटा क्वेश्चन आप क्वेश्चन दोगे मैम, जो भी हाँ? आप क्वेश्चन दोगे उसी में से आएंगे एग्जाम में ना। अभी के लिए तो उसी में से आएगा बेटा, फाइनल नहीं कुछ कह सकती मैं. ठीक है, ये तो और जो की बात पढ़ाया है वो तो लेके नहीं चलना. ठीक है, कॉन्सेप्ट जो पढ़ाए हैं. ठीक है, मैम हम लोग मेडिकल से मैम, थोड़े रहम कर दो। आई डोंट बी. हाँ, मैंने जब पढ़ाने में रहम नहीं किया, पूरा पढ़ाया, तो मैं क्यों रहम करूं? सोचना भी नहीं. मैथ बहुत हार्ड No. सब्जेक्ट है मैम। क्योंकि 2 साल पहले मैथ्स पढ़े थे और अभी इतने सारे अच्छा मैं भूल भी अच्छा. गई हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता कैलकुलेशन। तो मैं क्या पढ़ा रही हूँ फिर? मैं फारसी ये पढ़ा रही सब हूँ. मैम, ये सब चैप्टर देख मैम के धीरे छोड़ा धीरे है। हो जाएगा मैम, बट मैम अच्छा. धीरे धीरे, क्योंकि 2 साल बाद अचानक से मैथ सामने आ जाता है तो मजा शौक आ जाता है फिर तो, मैम। है ना? मैथ में कैसे हम लोग पास हुए आपको पता है? ज्यादा ही. पूरी रट्टा लगा लिए थे मैथ का। मैम इनको अच्छा. क्वेश्चन पेपर याद दे आता देना. है फिर ऐसे ही जाके एग्जाम में। डोंट वरी, व्हेन आई गिव यू क्वेश्चंस ना, पहले वो डिस्कस करना, फिर बात करेंगे. ठीक है, ओके देन. मैम ये से एक बार अच्छे से रिवाइज करवा देना डिटर्मिनेंट्स के प्रॉपर्टीज वाला. डिटर्मिनेंट्स की मैम, प्रॉपर्टीज. इनको ओके, आई पेपर विल डू. हाँ जी, इनको क्वेश्चन पेपर ही दे दो बना के आप. इनका तो बेटा मैं यहाँ तो दे दूंगी, बट व्हाट अबाउट द फाइनल्स? टेल मी. मैम तब तक तो मैम है अभी बट आपको ही बनाना है मैम। अरे सडनली चेंज हो गया बात रूल. हो देन गया आपसे व्हाट थोड़ा। विल यू डू? कोई वो तो नहीं रहता ना कि हार्ड एंड फास्ट रूल. उसी मांग लेंगे मैम. अच्छा ठीक है, फिर तो बाकी पेपर्स भी मांग लो बच्चे, और टीचर से भी कह दो वो भी पेपर्स दे दें आपको, पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, डायरेक्ट नेक्स्ट सेक्शन में पहुंच जाओ. क्या फायदा है ना? टीचर से मैम बोले उसी में बच्चे जाएगा, आप ले लो 2-4 दिन। अगर यही हाल रहा ना, तो आने वाले समय में यहाँ पर इलिटरेट निकलेंगे पढ़ के सारे बच्चे, अगर सारे टीचर्स पेपर देने लगे बच्चों को तो. ठीक है, और देश तरक्की नहीं करेगा, देश बुरा हाल हो जाएगा देश का. थिंक अबाउट द फ्यूचर ऑफ योर कंट्री फर्स्ट. टीचर का छोड़ो, मैं बस बता मैथ दे की चाहिए मैम, हमें कौन सा इंजीनियर बनना है मैम, हमें तो Don't think फार्मासिस्ट बनना है ना. तो देखो, each and every subject has its own importance and you have हाँ, to मुझे think समझ about है it. फार्मेसी में मैथ्स का करना क्या है, हमें वो भी लॉग और ये सब में क्या करना है. ये सब मैट्रिसेस जो हमने किया वो भी मेरे को समझ नहीं आया. समझ आएगा जब आगे पढ़ोगे तो. ठीक है, डोंट वरी. अच्छा, प्लीज कीप साइलेंट ऑल ऑफ यू बेटा, लेट मी कवर इट. ठीक है, प्लीज कीप साइलेंट. ओके, देन वी हैव एक्सरसाइज 7.2 एंड बेटा 7.2 में आपको क्या दिया है? आपको रेशो गिवन है. फर्स्ट क्वेश्चन में 2:3 रेशो आपको गिवन है.
and it is given to you that the 2 points are here -1, 7 and 4, -3. ठीक है? And what do you have to do? You have to find that point जिसमें ये 2:3 रेशो में उसे कट कर रहा है. You can do this. ये क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं होगा? ठीक है? ओके. तो क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो गया था मेरे को लगता है. सेम क्वेश्चन हमने किया था. ठीक है ना? कि ट्राई सेक्शन में उसे वो कट कर, ठीक है ना, ट्राई सेक्शन में कट हो रहा था. वी कैन डू दिस. इसको छोड़ दो, थर्ड क्वेश्चन को कोई जरूरत नहीं है. वी आर नॉट किड्स. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? फाइंड द रेशियो. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10, 6 and -8 is divided by -1 and 6. देखो अब आपको पॉइंट दे दिया गया है, ये वाला पॉइंट है और वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है. ठीक है? आप k:1 रेशियो ले लीजिए इसकी एंड यू कैन प्रोसीड फर्दर. ये भी हो जाएगा क्वेश्चन. इज इट क्लियर बच्चे? अगर नहीं होता जस्ट लेट मी नो, आई विल डू इट देन. ठीक है? एक बार हाँ ट्राई करना. नहीं होता है तब मैं कर दूंगी, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसमें कुछ अलग से नहीं है. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? फाइंड द रेशियो आपको निकालनी है इन विच अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, B. A क्या है? 1, -5 एंड B क्या है? -4 and 5. ये डिवाइड कर रहा है बाय द डिवाइडेड बाय द x एक्सिस. ठीक है? ऊपर एक क्वेश्चन हमने किया था, इफ यू रिमेम्बर, डिवाइड बाय द y एक्सिस कुछ कर था. वो मैंने शायद करवाया था आप लोग को. आ गया ये रहा. फ्रॉम द पॉइंट, नहीं ये तो एक ही डिस्टेंस है. एक डिवाइड वाला क्वेश्चन करवाया था आपको. अदरवाइज वी कैन डू दिस क्वेश्चन. हम कर लेते हैं इस क्वेश्चन को. हाँ ये रहा शायद. हाँ, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट दिस एंड दिस. ठीक है? आपको तब निकालना था रेशियो भी और वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी. इसमें y एक्सिस कर रहा था. अब क्वेश्चन में क्या है आपके? ये x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है. ठीक है? अगर x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा? कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा? x, 0 बनेंगे इसके कोऑर्डिनेट, है ना? x, 0 हमारे पास कोऑर्डिनेट होगा. इज डिवाइड बाय द x कोऑर्डिनेट. ये कल उस दिन भी मुझे उल्टा ही लगा था, आज भी उल्टा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द दिस डिवाइड बाय द x एक्सिस. लेट ये एक लाइन है, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही. सॉरी, अगर ये मुझे उल्टे वे से लेना है तो ये एक लाइन है, इसको x एक्सिस डिवाइड कर रही है. ठीक है? दिस इज द x एक्सिस. तो इट मींस कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट होगा लेट कि उस पे क्या हो जाएगा? मेरा x कोऑर्डिनेट तो होगा और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा. ठीक? व्हाट यू हैव टू डू नाउ? आपको इनमें से दोनों में से क्या करना है? k:1 लेके रेशियो 1 को लेके y कोऑर्डिनेट निकालना है और उसको इक्वेट करना है 0 के. ठीक है? y कोऑर्डिनेट निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा? 5k + 5 अपॉन k + 1 = 0. वहां से आपकी k की कुछ वैल्यू आ जाएगी. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ k अपना दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में उसने पूरा कोऑर्डिनेट निकालने तक कहा है. ठीक है? तो कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 5. एंड देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 इज, ये पैरेललोग्राम बेस्ड है जो हमने प्रॉपर्टीज के बेस पे किया था, उसी पे ये भी बेस्ड है. आपको पता है कि पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यूज दैट, वेदर यू कैन यूज द रेशियो फॉर्मूला, और आप इसके चाहे तो डायगोनल्स पे भी बात कर सकते हैं. ठीक है? कि इसका रेशियो 1:1 है और इन दोनों का जो डायगोनल्स है, जो ये पॉइंट है, ये इस पॉइंट के भी इक्वल होगा. हमने ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन वी हैव डन दिस वन. एग्जांपल 10 हमने करा है. ठीक है? हम कहते हैं डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर. तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं डायगोनल AC के मिड पॉइंट और जो मिड पॉइंट्स हैं BD के, दोनों इक्वल होते हैं. यहाँ पर देखो आपने क्या किया था? सिर्फ x कोऑर्डिनेट को ही इक्वल किया था, x कोऑर्डिनेट के, क्योंकि वी हैव ओनली वन वेरिएबल. बट इन क्वेश्चन में क्या है? यू कैन सी x और y दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को आपको इक्वल करना है.
ऑन दैट डे आल्सो जब मैंने वो क्वेश्चन कराया था तब भी मैंने ये बात कही थी, ठीक है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7th। कैन यू टेल मी अबाउट दिस? कह रहे हैं कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं ए पॉइंट के। वी हैव डन दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किया हमने, ये नहीं किया ना अभी? हाँ मैम। ओके, डू इट नाउ, अभी करो इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 अभी करो। क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। आपको ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। क्या कह रहा है बच्चे? ये कह रहा है एक सर्कल है और ए बी उसका डायमीटर है। ऑब्वियस है, डायमीटर हमेशा ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। लेट आई हैव दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट एज बी। ये जो पॉइंट है सेंटर से पास होगा, डायमीटर हमेशा सेंटर से पास होगा। और इसने मुझे क्या कह दिया? इसने मुझे कहा डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 3। इसने मुझे सेंटर के दो पॉइंट्स दे दिए, दैट इज 2 - 3, ठीक है। और मुझे एक बी पॉइंट दे दिया, दैट इज 1 4। ये बी पॉइंट की वैल्यू दे दी मुझे, ये कोऑर्डिनेट्स है 1 4 पे। नाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई? ए कोऑर्डिनेट की जो है बच्चे, ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल कि जो डायमीटर होता है वो 1:1 रेशो पे सेंटर होता है उसका, है ना? एग्री दिस स्टेटमेंट और नॉट? यस मैम। ठीक है। नाउ यू कैन यूज द सेंटर फॉर्मूला जो हमने अभी डिस्कस किया था। व्हाट इज आवर सेंटर फॉर्मूला? सेंटर पॉइंट्स कैसे निकालते हैं? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 वेयर, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, वेयर कोऑर्डिनेट 10 - 10। क्या कह रहे हो? इनका कोऑर्डिनेट 3 - 10 निकला है। अच्छा, निकल गया ए का 3 यस मैम, - यही 10। है। ओके, 3 - 10, ठीक है। तो आपने क्या किया? 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, यही किया ना? 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2। 2 2 is 4, 4 - 1 is 3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। सिमिलरली यू कैन डू फॉर द y प्लस 4 इक्वल्स टू -3 अपॉन 2, ठीक है ना? तो उससे आपका निकला -10 निकला कोऑर्डिनेट। y की वैल्यू -10 आई, -10 है बेटा। ओके, सो बच्चे आप सभी ने किया है कि एक दो स्टूडेंट्स ने किया? प्लीज लेट मी नो। अगर नहीं समझ आया तो मैं बता देती हूँ कैसे करना है। प्लीज टेल मी। एक बार बता दो। आई विल। यहीं पर बता दूं कि पूरा सॉल्व करूं? यहीं पे बता सकते हो, चल जाएगा क्लियर। जस्ट गिव मी अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस स्पेस। आपको क्या है बच्चे? एक सर्कल गिवन है, सर्कल में आपको डायमीटर दे दिया गया है और उस डायमीटर के सेंटर के पॉइंट्स दे दिए गए हैं, दैट इज 2, -3 आपको बता दिया गया है, ठीक है। और एक पॉइंट बी दे दिया है उस डायमीटर का जो कहा गया है 1, 4 है, और ए पॉइंट हमें निकालना है। मैंने ए पॉइंट्स को इटसेल्फ कंसीडर कर लिया x, y। नाउ बच्चे आई नो वेरी वेल कि कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन होती है उसके सेंटर के मुझे पॉइंट्स निकालने हैं, तो दैट पॉइंट अगर xy है, ठीक है, और ये पॉइंट x2 y2 है,